عبادت کی طرف توجہ دیں. کیا ڈپارٹ ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن جو آپ کا کام ہے وہ آپ اپنا کام کریے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. تھوڑا سا بول کے سن لیجئے، بس بہت دیر نہیں رہوں گا، چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوگی. ملاحظہ کریں. آدم یوسف عیسیٰ موسیٰ نوح زکریا ایک طرف، آدم یوسف شہر نبی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، والدین کے حوالے سے اکثر آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں. اکثر ہمارے علماء خطبہ جو اصلاحی عناوین پر گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی کبھار بلکہ اکثر و بیشتر والدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن آئیے آج ہم بھی والدین کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، اور اس پر میں اپنے اہل منبر سے معذرت کا طلبگار ہوں کہ عنوان چونکہ میرے پاس جتنے ہوتے ہیں وہ بڑے خشک ہوتے ہیں، اور میں نہ لطیفہ بول سکتا ہوں اور نہ آپ کو ہنسا سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، تو میں نے اس لیے ہمارے برادر معظم جناب کفی نمبر صاحب سے کہا کہ مجھے 11 بجے مائک دے دینا، کیونکہ 12 کے بعد وہ خطیب مجاہد ہے اور واقعی اپنے فن میں یکتا اور ید طولا رکھتا ہے کہ جو پبلک کو سنا سکتا ہے میں نہیں سنا پاؤں گا. اس لیے مجھے جب بھی آپ بلایا کریں تو 12 بجے سے پہلے وقت دے دیا کریں، تاکہ میں جو بھی اپنا ٹکڑا جیتے جاتے مجمع کو سنا سکوں، سنا دوں. پھر بعد میں اہل ہنر، اہل فن، اہل دانش اپنے اپنے طور پر کون سے اپنے افکار و خیالات پیش کریں. تو بس میری گفتگو کو مان لیا گیا. پھر بھی ہم تقریباً پونا گھنٹہ تاخیر سے آپ کے درمیان ہے. بہرحال سب مہمان قابل عزت ہے، لیکن یہ چونکہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے گزارش کی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آئیے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. والدین کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ اور رسول کے بعد ایک انسان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، جملوں پر توجہ کرتے جانا. کفیل بھائی کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگا، میں اس سے بڑا متاثر ہوا کہ میں اہل منبر کی نہیں، انہوں نے منبر کی قید لگائی، لیکن میں اتنی جرات نہیں کروں گا. تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں مجمع کی نہیں بلکہ اہل علم کی انہوں نے فرمایا توجہ چاہتا ہوں. میں یہاں پر ایک جملہ ان سے جو ہے وہ استعارتاً لیتے ہوئے ایک بات عرض کروں گا کہ میں مجمع میں اہل عقل کی نہیں بلکہ اہل محبت کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ میری گفتگو محبت والوں کے درمیان ہے. اس لیے کہ یہ ماں باپ کا معاملہ ہے، اور ماں باپ کا معاملہ عقل پر نہیں ہوتا بلکہ محبتوں پر ہوتا ہے، عقیدتوں پر ہوتا ہے، چاہتوں پر ہوتا ہے. تو میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں. اب اس کو ہم تھوڑا سمجھتے چلیں. اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق بیان فرمایا وہ ماں باپ ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. دیکھو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے فوراً بعد حکم آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ کا احسان اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا ایک انسان پر ہے جس کے وہ ماں باپ ہیں، اس پر احسان ہے. وجہ دیکھیے، بیچ مشک میں نطفہ رکھا اللہ نے، ماں کے پیٹ تک پہنچانے کا سبب باپ بنا. اس کے بعد ماں کے شکم کے اندر تصویر بنائی اللہ نے، اس بوجھ کو اٹھانے والی ماں ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں وہ بوجھ اٹھایا. قوم کی بچیاں بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور گفتگو کھل کر کرنے کا عادی ہوں. یقیناً بے تکے اور بے حیا جملے کہنے کی میری عادت نہیں، لیکن
बात आपके समझ में आए, तवज्जो करना अपने जवानों की, लाउबाली लड़कों की खुसूसी तवज्जो, जो फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, कहानियां देखकर, नावलें पढ़कर, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर जो अपने माँ बाप की अजमत को अल्लाह अकबर खो चुके हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने माँ के शिकम में सूरत बनाई, उस बोझ को उठाने वाली माँ है और 9 महीने तक माँ उस बोझ को उठाए फिरती है। मैं अपने जवानों से पूछना चाहता हूँ, जाके पूछो उन मर्दों से जिनके गुर्दे में पथरी हो गई है, इतनी सी पथरी गुर्दे में लेकर फिरने में कितनी तकलीफ होती है कि जब वो दर्द होता है तो इंसान जमीन पे लोटने लगता है, इंसान ऐसे तड़पता है जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। अल्लाह अकबर, अगर गुर्दे के अंदर छोटी सी चरकेलम की पथरी हो जाए तो इंसान इतना बेचैन होता है मर्द होकर। उस माँ के दिल से जाके पूछ जिसने 3-3, 3.5 किलो के बच्चों को अपने शिकम में उठा करके फिरा, लेकिन उसके बावजूद वो माँ काम नहीं करती कि ये बोझ कहाँ से आ गया, वो माँ शिकवा नहीं करती कि ये बोझ कहाँ से आ गया, वो माँ अल्लाह अकबर नफरत नहीं करती कि ये बोझ कहाँ से आ गया, बल्कि कुर्बान जाए ये माँ की ममता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसकी खुशियों में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है उसकी खुशियों में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुशियों में इजाफा होता जाता है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, मर्द और ताकतवर होने के बाद पथरी का बोझ गुर्दे में न उठाने की कुव्वत रखने वालों, अल्लाह अकबर, जब तुम अपनी माँ को तेज नजर से देखते होंगे उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त तुम अपनी माँ को छोड़कर अपनी ससुराल में जाकर रहते होंगे उस वक्त तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। और अल्लाह अकबर, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बाप जिसने अपने मुंह का लुकमा खिलाया, वो बाप जिसने न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी, कोई मौसम नहीं देखा, जिसका सर का पसीना पैरों तक आया है हमें शबाब तक पहुंचाने के लिए, हमें जवानी तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह अकबर, जब उस बाप की हम तौहीन करते होंगे उस बाप के दिल पर गुजरता क्या होगा। आज के मैं आपको बताऊं माँ क्या है। अल्लाह अकबर, खुदा की रहमतों के मजहर को माँ कहते हैं। तवज्जो करें, खुदा की रहमतों के मजहर को माँ कहते हैं। नसीबे शहर की शफ़क़तों की तस्वीर को माँ कहते हैं। तितलियों के बागपन की को जो अल्लाह अकबर चैलेंज करती हुई नजर आए उसको माँ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का इजहार जिसके जरिए से होता है उसको माँ कहते हैं। जो अपना शबाब अपने बच्चे में कुर्बान कर देती है उसको माँ कहते हैं। जो दूध जिगर पिलाकर एक बच्चे को जिंदगी देती है उसे माँ कहते हैं। जो पैदाइश के वक्त हजारों झटके मौत और जिंदगी के दरमियान लेकर भी मुस्कुराती है उसको माँ कहते हैं। जो गमों के खून औलाद के लिए पी लेती है उसको माँ कहते हैं। जो गम खाकर औलाद को खुशियाँ देती है उसको माँ कहते हैं। अगर ये कहूँ तो ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, शफ़क़ का जमाल, उफ़क़ की सुर्खी, चाँद की चांदनी, सूरज की किरणें, तितलियों का बागपन, फूलों की गुनगुनाहट, फूलों का तबस्सुम, दरियाओं का तरन्नुम, आबशारों का गिरना, बादलों की बुलंदी, ज़मीन की इंकिसारी, ये सारी चीजें, शबनमी कतरों की आजिज़ी, ये सारी चीजें एक साथ जमा होती है तो महज़ चश्मे तसव्वुर में कोई कहता है या अल्लाह इतना हुस्न है क्या ये कोई किसी पे कुर्बान कर सकता है। तो कुदरत का नकीर अल्लाह अकबर उस मुजस्सम हुस्न को किसी के सामने मुजस्सम करके खड़ा करता है और एक नन्ही सी चाँद उसकी गोद में देता है और फिर वो मुजस्सम हुस्न उस नन्ही सी चाँद पर अपना सब कुछ कुर्बान खुशी खुशी करती है। तो फितरत हैरत से पूछती है ये कौन है और ये कौन है।
उसको बच्चा और औलाद नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शहनाज़े गौसे आज़म। अल्लाहु अकबर। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसे माँ कहते हैं, जिसकी खुशी में अल्लाह की खुशी है उसे माँ कहते हैं, जिसके जुमले पूरे होने से पहले दुआ कबूल होती है उसे माँ कहते हैं, जिसकी दुआ चोरों को अब्दाल बना दे उसको माँ कहते हैं, जिसकी बद्दुआ वलियों को अल्लाह अकबर वलियों की विलायत को छिनवा करके सूअर चराने लगा दे उसको माँ कहते हैं। आपने माँ को समझा क्या है? अल्लाह अकबर। लाउबाली में जिंदगी गुजार कर अपने माँ बापों की नाफरमानी करने वालों, आओ एक हदीस दिल के कानों से सुनो। अल्लाह मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मसदूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा तवज्जो से सुनना। आज के इस दुनियावी माहौल के अंदर, आज के इस नफरतज़दा माहौल के अंदर माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं रहती। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कहा जाता है, माँ बाप को कहीं डॉक्टर डॉक्टरी कहा जाता है। बड़ी मासरत के साथ पीरों के हाथ चूमने वाले जब माँ बाप के सामने खड़े होते हैं तो आंखें तान के खड़े होते हैं। मैं पीरों के हाथ चूमने का मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुर्शिदों के हाथ और पैर दोनों चूमता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, उस पर दलील भी रखता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने रसूलुल्लाह के हाथों को भी चूमा है, पैरों को भी चूमा है। यहाँ तफसील का मौका नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, मेरी कौम के जवानों उलमा और मशाइख के पीछे हाथ चूमने के लिए दौड़ने वालों जरूर हाथ चूमो, मगर इतना याद रखना, पीरों के हाथ चूमने से पहले तुमने क्या गौर किया? जो घर में माँ को डांट के आए हो, जो घर में बाप को गुस्सा दिखा के आए हो, अब यहाँ हाथ चूमने आते हो। और बड़ी माजरत के साथ नाक खानों को नजर जरूर दीजिए, नाक खानों को नजराना जरूर दीजिए, मुकर्रिरों को दीजिए, नकीबों को दीजिए, उलमा को दीजिए, मशाइख को दीजिए, सबकी खिदमत कीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पैसों की गड्डियाँ उड़ाने वालों, बाप ने मांगा था, लेकिन मुझे दवा को पैसे नहीं है, बाप को डांट के आया, बस करो, तुम्हें कितना खर्चा करूँ तुम्हारे पीछे, या सब तुम्हारे पीछे लगा दूँ। सालिम बेटे वहाँ डांट के आ रहा है और यहाँ बांट रहा है, वहाँ डांट के यहाँ बांटना, तेरे मुंह पे फेंक करके मार दिया जाएगा, तुझे मरदूद कर दिया जाएगा। सुन लो, अगर वहाँ दिया है तो यहाँ भी देना काम आएगा, और अगर वहाँ डांट कर यहाँ बांट रहे हो तो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। कैमरे में आने की लालच में पैसे